Praise the Lord. We welcome you all for this evening prayer meeting and be in the spirit of prayer as we begin the meeting. Shall we pray? Our loving Heavenly Father, our gracious and wonder working God, God of all grace, mercy, and peace, God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob, the Most High, the possessor of heaven and earth, the Almighty God. We thank Thee for Thou art the one who sees us and hears us, the true and the living God, and there is none beside Thee. That is why we are here in Thy presence. For Thou hast said, wherever two or three are gathered in My name, there I am in their midst. We strongly believe, according to Thy promise, Thou art in our midst. O Lord, help that we, Thy people, purchased by Thy blood, with great reverence and respect, we may be in Thy presence, with hearts full of gratitude unto Thee, because Thou hast done great things for us, even at a time when we were far away from Thee. Thou hast brought us nigh unto Thee. When we were drowned in the tumultuous and disturbed waters of this sinful world, Thou hast delivered us by Thy power, by Thy mighty power, even by the power of the cross and the blood and the resurrection. And Thou hast, Lord, transplanted us in Thy presence, O Lord, into Thy family. With heart full of gratitude, we worship Thee for the great things Thou hast done unto us, even though we are not worthy to receive the least of Thy mercies. With hearts full of gratitude, we worship and adoration. We glorify Thy name. Thank Thee, even in this midst of this coronavirus, which is playing havoc all over the world, Thou hast made this wonderful provision whereby we could be connected online and pray with the fellow believers all over the world in several places, in several ways. This ministry on online is going on. Bless every one of them who is taking initiative and who is trying to contact people of Thine and communicate Thy word of grace. Thus, somehow, the fire is burning, ever burning, according to Leviticus chapter 6, verse 13. So, Lord, be with us even today evening here in Delhi as we gather together our assemblies in Vasant Kunj, in Gurgaon, Sangamihar, Noida, and Sarai, as we all tuned up for this online service. Lord, bless our fellowship together, all our families, our children, their children may be blessed of Thee. Keep all of us in the center of Thy will. Even through this ministry, we may be challenged. Even through this ministry, those who have not been saved, they may be saved. They may be spoken to by Thee. Even through this ministry, Thy people who are saved may be encouraged to do Thy work more and more effectively. And thus we all may be prepared for the coming of the Lord Jesus Christ. We know for sure Thou art going to come again, because Thou hast said in John's Gospel 14, verse 3, I will come again. So we are very sure Thou art going to come again. O Lord, when Thou wilt come, and we may be able to see Thee as Thou art, so that we may be like Thee, according to 1 John chapter 3, verse 2, and thus we may be in Thy very presence forever and ever, away from all the din and noise of this world, away from the corruption and confusion of this world, where we are going to be in Thy very presence, where peace and tranquility reigns. With that great expectation, as we live our lives, Lord, be with us. Even this prayer meeting may be a great blessing and challenge for all of us. Be with Thy servant who would be sharing the word. Be with Thy servant who would be singing. Lord, as we all sing together, Lord, in our respective places, be with us. Encourage us through the singing. Encourage us through the reading of Thy word, meditating the word, and stir up our hearts to pour out our souls in Thy presence, O Lord. Once again, we commit and commend ourselves into the loving hand. Pray for all those who are not well in our midst. Touch them and heal them, especially Abi in Hyderabad. Lord, touch him and heal him. Will Thou not hear our prayers? O Lord, we look unto Thee, we depend upon Thee. Answer our prayers on His behalf. Committing all of us into the loving hand, expecting great things to happen in our midst as we trust Thee, serve Thee, follow Thee. Pray with thanksgiving in the precious and sweet name of our Lord and our Savior, Jesus Christ. Amen. Brother Raj will help us. We will sing song number 130. 130 ये पिंक किताब में से 130 गाएंगे। हम यीशु प्रभु के हैं और हम उसके ही रहेंगे। बड़ी किताब में 489 489
In the big book it is 489. In Tamil book it is 434. Tamil book some of you may be having 434. In the small book it is 130. हम यीशु प्रभु के हैं. हम यीशु प्रभु के हैं और उसके ही रहेंगे. हम यीशु प्रभु के हैं और उसके ही रहेंगे. उसने जो बचाया है गुण उसके गाएंगे. उसने जो बचाया है गुण उसके गाएंगे. हम यीशु प्रभु के हैं और उसके ही रहेंगे. हम यीशु प्रभु के हैं और उसके ही रहेंगे. अनुग्रह सच्चाई से वचन जो देहधारी हुआ. अनुग्रह सच्चाई से वचन जो देहधारी हुआ. हमने उसकी महिमा देखी पिता के एकलौते की. हमने उसकी महिमा देखी पिता के एकलौते की. प्रेम उसका जो अद्भुत है आओ मिलकर गाएंगे. प्रेम उसका जो अद्भुत है आओ मिलकर गाएंगे. हम यीशु प्रभु के हैं और उसके ही रहेंगे. हम यीशु प्रभु के हैं और उसके ही रहेंगे. जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई. जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई. हम सबको प्रकाशित किया अपने वचन के द्वारा. हम सबको प्रकाशित किया अपने वचन के द्वारा. आओ पर को प्रभु भला है उसकी स्तुति हम करेंगे. आओ पर को प्रभु भला है उसकी स्तुति हम करेंगे. आओ यीशु प्रभु के हैं और उसके ही रहेंगे. हम यीशु प्रभु के हैं और उसके ही रहेंगे. जीवते पत्थर से घर जो बना था वही प्रभु राजा है. जीवते पत्थर से घर जो बना था वही प्रभु राजा है. तेज प्रभु का भवन में आया महिमा से भर गया. तेज प्रभु का भवन में आया महिमा से भर गया. उसके मंदिर में हम मिलकर महिमा गाएंगे. उसके मंदिर में हम मिलकर महिमा अब गाएंगे. हम यीशु प्रभु के हैं और उसके ही रहेंगे. हम यीशु प्रभु
धर्मी ठहराया, महिमा अपनी दे दी। उनको बुला कर धर्मी ठहराया, महिमा अपनी दे दी। उसे पुत्र के रूप में डाला, हम खुशियाँ मनाएंगे। उसे पुत्र के रूप में डाला, हम खुशियाँ मनाएंगे। हम यीशु प्रभु के हैं और उसके ही रहेंगे। हम यीशु प्रभु के हैं और उसके ही रहेंगे। महिमा से भरपूर प्रभु हमारा दूतों के साथ आता है। महिमा से भरपूर प्रभु हमारा दूतों के साथ आता है। बाँटो जो थे उन्हीं को वो लेगा और महिमा देगा। बाँटो जो थे उन्हीं को वो लेगा और महिमा देगा। उस रात के योग बनाया, हालेलुया हम गाएंगे। उस रात के योग हमें बनाया, हालेलुया हम गाएंगे। हम यीशु प्रभु के हैं और उसके ही रहेंगे। हम यीशु प्रभु के हैं और उसके ही रहेंगे। महिमित वो राजा महिमा वास करते, महिमा से भरपूर है। महिमित वो राजा महिमा वास करते, महिमा से भरपूर है। प्रभु हमारा दीपक बनेगा, तेज उसके प्रगट होगा। प्रभु हमारा दीपक बनेगा, तेज उसका प्रगट होगा। गानो युगम हम सब प्रभु के साथ रहेंगे। गानो युग तक हम सब प्रभु के साथ रहेंगे। हम यीशु प्रभु के हैं और उसके ही रहेंगे। हम यीशु प्रभु के हैं और उसके ही रहेंगे। उसने जो बचाया है, गुण उसके गाएंगे। उसने जो बचाया है, गुण उसके गाएंगे। हम यीशु प्रभु के हैं और उसके ही रहेंगे। हम यीशु प्रभु के हैं और उसके ही रहेंगे। बड़ी किताब में 418, बड़ी किताब में 418, बड़ी किताब में 123, 123। हे प्रभु भेज अब तू जागृत। हे प्रभु भेज अब तू जागृति। हे प्रभु भेज अब तू जागृति। टूटे मन से है ये मेरी विनती। टूटे मन से है ये मेरी विनती। हे प्रभु भेज अब तू जागृति। हे प्रभु भेज अब तू
जागृति, प्रथम प्रेम से हूँ मैं अब गिरा, हो गया ठंडा प्रेम मुझ में तेरा। प्रथम प्रेम से मैं अब गिरा, हो गया ठंडा प्रेम मुझ में तेरा। भर दे प्रेम अब मुझ में तू अपना, भर दे प्रेम अब मुझ में तू अपना। हे प्रभु बेजब तू जागृति, हे प्रभु बेजब तू जागृति। तू गिरतों को है देता सहारा, जिनका नहीं कोई रहता चारा। तू गिरतों को है देता सहारा, जिनका नहीं कोई रहता चारा। घायल हाथों से प्रभु तू उठाता, घायल हाथों से प्रभु तू उठाता। हे प्रभु बेजब तू जागृति, हे प्रभु बेजब तू जागृति। शत्रुओं के फंदों में मैं फंस गया, खोल दे प्रभु अब बंधन मेरा। शत्रुओं के फंदों में मैं फंस गया, खोल दे प्रभु अब बंधन मेरा। वापस दे प्रभु आनंद मेरा, वापस दे प्रभु आनंद मेरा। हे प्रभु बेजब तू जागृति, हे प्रभु बेजब तू जागृति। तेरा और भाइयों का दोषी मैं बना, तुझसे और उनसे मैं चाहता हूँ क्षमा। तेरा और भाइयों का दोषी मैं बना, तुझसे और उनसे मैं चाहता हूँ क्षमा। अपने लहू से धो दे हृदय मेरा, लहू से धो दे हृदय मेरा। हे प्रभु बेजब तू जागृति, हे प्रभु बेजब तू जागृति। एकता से रहना प्रभु मैं हूँ चाहता, बैठता को प्रभु जब मुझसे निकालता। एकता से रहना प्रभु मैं हूँ चाहता, बैठता को प्रभु जब मुझसे निकालता। शत्रु बराता, शत्रु की शक्ति को प्रभु जबराता। हे प्रभु बेजब तू जागृति, हे प्रभु बेजब तू जागृति। गिरी गवायों को प्रभु फिर उठाता, तब जागृति की अग्नि लगाता। गिरी गवायों को प्रभु फिर उठाता, तब जागृति की अग्नि लगाता। भस्म हो जाए जिससे पाप का भूसा, भस्म हो जाए जिससे पाप का भूसा। हे प्रभु बेजब तू जागृति, हे प्रभु तू जागृति। आत्मिक जागृति का बन जाए सोता, जगत तक जाए तब प्रभाव उसका। आत्मिक जागृति का बन जाए सोता, जगत तक जाए तब प्रभाव उसका। हृदयों
कर दे हारा भारा, हृदयों को कर दे हारा भारा। हे प्रभु बे जब तू जागृति, हे प्रभु बे जब तू जागृति, टूटे मन से है ये मेरी विनती, टूटे मन से है ये मेरी विनती। हे प्रभु बे जब तू जागृति, हे प्रभु बे जब तू जागृति। We'll sing song number 6, Brother Raju, from the small book, song number 6, and in Hindi, बड़ी किताब में 704। क्या है तेरी गवाही, क्या है तेरा बलिदान, क्या है तेरी गवाही, क्या है तेरा बलिदान। मसीह यीशु को ग्रहण करके जो तुम सोने लगे, मसीह यीशु को ग्रहण करके जो तुम सोने लगे। जागो उठो, जागो उठो, आओ विश्वासी। क्या है तेरी गवाही, क्या है तेरा बलिदान, क्या है तेरी गवाही, क्या है तेरा बलिदान। प्रेरितों के समय में हिंसा जब प्रबल हुई, प्रेरितों के समय में हिंसा जब प्रबल हुई, सब कुछ सहते हुए, सब कुछ सहते हुए, आत्मा बचाते रहे। है तेरी गवाही, क्या है तेरा बलिदान, क्या है तेरी गवाही, क्या है तेरा बलिदान। पत्थरवा किए गए, हारे से चीरे गए, पत्थरवा किए गए, हारे से चीरे गए। प्रचार वो करते रहे, प्रचार वो करते रहे, दर्शन बने भी रहे। क्या है तेरी गवाही, क्या है तेरा बलिदान, क्या है तेरी गवाही, क्या है तेरा बलिदान। घोड़े से मारे गए, कैद में भी डाले गए, घोड़े से मारे गए, कैद में भी डाले गए। कैद की बेड़ियां भी, कैद की जो बेड़ियां भी,
मसीह यीशु को ग्रहण करके क्यों तुम सोने लगे। मसीह यीशु को ग्रहण करके क्यों तुम सोने लगे। जागो उठो, जागो उठो, आओ विश्वासी। क्या है तेरी गवाही, क्या है तेरा बलिदान, क्या है तेरी गवाही, क्या है तेरा बलिदान। We are praying. After prayer, Brother Subbarao will give the word. Our loving Heavenly Father, our gracious and wonder-working God, be with Joseph, Daniel, Mercy, and Johan. They may get power. Oh Lord, power may be resumed. Lord, we do not know why it has happened like this. Lord, you only help them not to be discouraged. Oh Lord, encourage them. Even through the situation, they may somehow get connected and they may be able to hear thy word and participate in prayer. Lord, watch over them. Be with Subbarao as he shares the word. Hide him behind thy cross. Use him for thy glory. Cover him under thy wings. Equip him, empower him. Help that we may be stirred up in our hearts to pour out our souls in thy presence according to thy word in Psalm 62 verse 8. Watch over us. Thank you for all those who are praying for us. Pray for all our believers, those who gather in Basant Kund, in Gurgaon, Sangamihar, Noida, and Sarai. Watch over them all. Lord, as we hear the word, give us hearing ears and understanding hearts. Help us to glorify thy name through obedience to thy word. Committing all of us into the loving hand, expecting great things to happen in our midst. Pray with thanksgiving in the precious and sweet name of our Lord and our Savior, Jesus Christ. Amen. आमीन। Now we shall hear the word of God. प्रेज द लॉर्ड। हम प्रार्थना में जाने से पहले प्रभु के वचन में से देखेंगे गिनती पुस्तक 7 अध्याय 89 पद, नंबर्स चैप्टर 7:89, తెలుగులో 90 వచనం। गिनती पुस्तक 7 అధ్యాय उसका 89 पद, సంఖ్యాకాండము 7 తెలుగులో 90, इंग्लिश लो नंबर 7:89। सब में पढ़ेंगे। 7:89 गिनती पुस्तक। और जब मूसा यहोवा से बातें करने को मिलाप वाले तम्बू में गया, तब उसने प्रायश्चित के ढकने पर से जो साक्षी पात्र के संदूक के ऊपर था, दोनों करूबों के मध्य में थे, उसको आवाज सुनी जो उसने बातें कर रहा था, और उसने यहोवा उससे बातें की। प्रार्थना करें। प्रेमेश्वर के पिताजी, जीवते परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद स्तुति आराधना करते हैं प्रभु। इस मंगलवार के दिन प्रभु चर्च प्रेयर के रूप में हम प्रभु अलग अलग जगह पहले इकट्ठा होते थे, अब हमें ऑनलाइन में प्रभु बहुत से लोग, पहले तो थोड़े लोग इकट्ठा हो पाते थे प्रभु, अब प्रभु बहुत से लोग इसमें जुड़ने के लिए आपने अनुग्रह दिया प्रभु। जो भी इस लॉकडाउन में इस कारण से प्रभु हमारे प्रभु इस प्रकार से प्रोग्राम आपने बनाया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप जो कुछ करते हैं रोमन्स 8:28 के अनुसार हमारी भलाई के लिए आप करते हैं, इसलिए आपको धन्यवाद स्तुति आराधना करते हैं प्रभु। इस समय को आशीष दे। मैं तो अयोग्य हूँ, आपकी पवित्र लहू के छिड़काव के नीचे अपने आप को लाता हूँ। मेरे से बात करे, जो वचन भाग हमने पढ़ा आप आशीष दे, आप ये तोड़ के हमें वचन दे, ताकि हम सब प्रभु उस समय प्रभु प्रार्थना में समय बिता सके। प्रभु प्रार्थना की आत्मा हमारे ऊपर उंडे लिए। एक और बार हम सबको आपकी पवित्र लहू के छिड़काव के नीचे लाते हैं। आपके दास ब्रदर जयश्री राव के लिए भी धन्यवाद करते हैं। आप उनको भी अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, अनुग्रह दे, लीडिंग करने में सहायता करें। एक और बार जितने भी प्रभु भाई बहन वचन सुन रहे हैं प्रभु ऑनलाइन में, और प्रभु सबके साथ रहे, उन सबको आशीष दे। इस समय को बहुत ही फलवंत करे, और एक दुष्टि को आपके नाम से बांधते हैं। और जहाँ भी लाइट नहीं है प्रभु जी, ब्रदर डैनियल जोसेफ के घर में प्रभु जी, जोसेफ डैनियल घर में भी लाइट का प्रबंध आप करें। और ऐसा कहीं प्रभु जी कोई निराश ना हो। आज जोहान को गाना था प्रभु जी, आने वाले दिनों में और अच्छा प्रभु जी आप आपकी इच्छा में प्रभु उनको मौका दे, आपके नाम की महिमा हो प्रभु। इस समय को आप बहुत ही आशीष बनाए। धन्यवाद साथ प्रार्थना लाते हैं
शीघ्र नाम वाले यीशु मसीह के नाम में सुने ग्रहण करें, आमीन। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं गिनती पुस्तक 7 अध्याय 89 पद में, और जब मूसा यहोवा से बातें करने को मिलाप वाले तंबू में गया। तो यहाँ पर देखते हैं मूसा परमेश्वर से बात करता था जब प्रभु के उस मिलाप वाले तंबू में, यानी तंबू मतलब तेलुगु में गुड़ारमु, सो उस टैबरनेकल इंग्लिश में, उस जहाँ पर पवित्र स्थान था, जहाँ पर मूसा जाके वह प्रार्थना कर रहे। यहाँ पर हम देख रहे 2 बातें हो रहे हैं, एक तो मूसा परमेश्वर से बात कर रहे और परमेश्वर से भी मूसा से बात कर रहे। जनरली सामान्य रूप से हम लोग विश्वासी लोग जब प्रार्थना करते हैं, हम वन वे प्रेयर होता है, हमारे तरफ से हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रभु क्या हमसे बात कर रहे हैं हमें मालूम नहीं होता। कई लोगों का ऐसा अनुभव नहीं होता, लेकिन कुछ भक्त लोग हैं, ये पुराने नियम में बहुत ये मूसा है, एलिया, एलीशा और बड़े बड़े भक्त लोग जो है वो बात करते थे प्रभु से, और परमेश्वर भी उनको उनकी आवाज़ भी सुनते थे। सो यहाँ पर मिलाप वाले तंबू यानी उस पवित्र स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति में गया। सो जब कभी हम विश्वासी के नाते हम लोग भी परमेश्वर की उपस्थिति में जाके हमें प्रार्थना करना। सो परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है तो हम जितने भी प्रार्थना करें उसमें हमें सच्चा अनुभव में हम नहीं रहते। इसलिए एक्सोडस 33:14 में देखिए एक बार, निर्गमन 33:14, निर्गम कांडम 33:14, एक्सोडस 33:14, निर्गमन 33 और उसका 14 पर। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। सो परमेश्वर खुद कहा, मैं तेरे साथ चलूंगा मूसा के साथ। सो हमेशा मूसा जो है परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करता था। सो हम लोग भी जब हम प्रार्थना में जाते हैं कि हम सचमुच हम परमेश्वर की उपस्थिति में अनुभव करते हैं। सो परमेश्वर की उपस्थिति अनुभव करना है तो फैमिली प्रेयर में या आपका चर्च प्रेयर में आप इतना ज़्यादा प्रभु के से नज़दीक अनुभव नहीं कर पाएंगे। जैसा मूसा परमेश्वर के साथ अकेले में परमेश्वर के साथ बिताता था, तभी हम संपूर्ण रूप से परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं मूसा के जीवन में 2 बार 40 डेज 40 नाइट्स परमेश्वर की उपस्थिति में गया, और उस पहाड़ पर, सीनाई पहाड़ पर उसने परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ खाया नहीं पिया नहीं, प्रभु की उपस्थिति में वो प्रार्थना करता रहा। इसलिए उसने वहाँ पर परमेश्वर के 10 कमांडमेंट्स, परमेश्वर की सारी आज्ञाएं वहाँ से उसने प्राप्त किया। सो हमारे जीवन में भी जब कभी कोई इम्पोर्टेंट मैटर होता है, हमें व्यक्तिगत रूप से परिवार अगर फैमिली में मैटर है या कलीसिया की मैटर है या इंडिविजुअल में भी कोई मुसीबत, समस्या, दुख को हम सामना करते हैं, ऐसे समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में अकेला जाके प्रार्थना करने के द्वारा ही हमें आशीष प्राप्त मिलेगा या विजय मिलेगा। एक वचन प्रभु ने भी कहा, देखे मार्क चैप्टर 9:29, मरकुस 9 अध्याय 29 पद, मरकुस सुसमाचार 9 अध्याय उसका 29 पद, मार्क सुवार्ता 9:29, मार्क 9:29। उसने उनसे कहा, ये जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। नीचे लिखा है उपवास प्रार्थना। तो यहाँ पर लिखा है अगर कोई दुष्टात्मा जाना है, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है हमारे लिए, उसमें हमें विजय प्राप्त करना है, तो हमें क्या करना है? उपवास प्रार्थना करना है। यहाँ पर प्रभु ने कहा बिना उपवास के ऐसी दुष्टात्मा नहीं निकलेगा। तो किसी के अंदर से अगर दुष्टात्मा निकलना है क्या करना है? उपवास प्रार्थना चाहिए, या और कोई इंपॉर्टेंट मैटर हमें जवाब चाहिए, उसके लिए उपवास प्रार्थना की जरूरत है। तो मूसा ने भी हमने देखा कि कैसे वो 40 दिन 40 रात प्रभु की उपस्थिति में उपवास प्रार्थना किया, तभी उसने अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर पाया और परमेश्वर से आज्ञा प्राप्त किया। सो हमारे जीवन में भी हमें ये प्रार्थना का बहुत इंपॉर्टेंट हमारे जीवन में होना चाहिए। खासतौर से उपवास प्रार्थना, जो विश्वासी लोग जो है उपवास प्रार्थना करते हैं, उनका जीवन एकदम के अंदर एकदम बल से भरे रहते हैं, आत्मिक बल से, आत्मिक शक्ति से भरे रहते हैं। इवन प्रभु यीशु मसीह भी जब इस संसार में सेवा आरंभ करने से पहले परमेश्वर पुत्र होते हुए भी प्रभु यीशु ने भी उपवास प्रार्थना किया। देखिए मैथ्यू चैप्टर 4 मत्ती सुसमाचार
4 अध्याय पहले 2 पद पढ़ रहा हूँ। मैथ्यू चैप्टर 4 1 और 2। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। सो प्रभु यीशु मसीह 40 डेज 40 नाइट वो भी उपवास प्रार्थना किया है कि प्रभु को मालूम है आगे उसके सामने बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। वो ये दुनिया वो किस लिए आया? सब मानव जाति के लिए क्रूस पर प्राण देने के लिए। उससे पहले लोगों को सुसमाचार प्रचार करने। देखिए 17 वर्ष, मैथ्यू चैप्टर 4 17। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। सो प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले अपना मुंह खोल करके जो सुसमाचार वचन दिया, उससे पहले उसने आत्मा में बल प्राप्त किया। 40 डेज 40 नाइट उपवास प्रार्थना किया। सो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद वो जबकि उनकी जरूरत नहीं था, लेकिन हमें एक आदर्श दिखाने के लिए कि आप प्रभु का सेवकाई करना है या कोई इंपॉर्टेंट काम कदम उठाना है, उससे पहले फास्टिंग प्रेयर का इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए हमें प्रभु ने आदर्शवंत बना और प्रभु यीशु मसीह एक रोल मॉडल बना। तो इसलिए वो 40 रात प्रार्थना की। लेकिन हम देखते हैं जब कभी कोई भी उपवास प्रार्थना करते हैं, टेस्टिंग भी आता है, शैतान की तरफ से टेम्पटेशन भी आता है। यीशु मसीह ये प्रार्थना किया 40 डेज 40 नाइट, शैतान ने तुरंत परीक्षा किया। या हम सारे नहीं पढ़ेंगे अभी। सो मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय में देखते हैं, पहले इसने शरीर के ऊपर यानी भोजन के विषय में उसने अटैक किया, फिर प्राण के विषय में अटैक किया कि ऊपर से गिरो करके तुम्हारा स्वर्गदूत बचाएगा करके। तीसरा उसने आत्मा के ऊपर अटैक किया कि मैं परमेश्वर मुझे धन्यवाद करो करके, ये सारा संसार मेरे हाथ में करके। तो ऐसा शरीर प्राण आत्मा तीनों पर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उसने टेम्पटेशन लाने की कोशिश की, लेकिन प्रभु ने वचन के द्वारा उसके ऊपर जीवंत हुआ। सो हमारे जीवन में भी जब कभी आप इवन मूसा भी जब 40 डेज 40 नाइट्स उपवास प्रार्थना किया, जब नीचे उतरा, जब वो लोग सोने के बछड़े बना करके नाच रहे थे, उसको एकदम क्रोध बढ़ता और हाथ में जो तकिया थी 10 कमांडमेंट्स उसको तोड़ दिया। सो ऐसा शैतान जो है, जब कभी हम भक्ति से रहना चाहते हैं, प्रार्थना ज़्यादा बिताना चाहते हैं, साथ साथ शैतान भी हमारे बैकग्राउंड में रहता है। इसलिए हमें बहुत जब फास्टिंग प्रेयर करते हैं, बड़े बड़े अद्भुत काम आश्चर्य हम प्रभु करता है, साथ साथ शैतान भी हमें परीक्षा करता है। इसलिए हमें बहुत सावधान से रहना है। इसलिए अपने आप को प्रभु को आत्म सौंपना। फिर हम अपने सब्जेक्ट में वापस जाएंगे। गिनती पुस्तक 7 अध्याय में अभी हमने पढ़ा कि किस प्रकार से परमेश्वर मूसा से बात करता था और मूसा परमेश्वर से बात करता था। इसलिए आप देखिए गिनती पुस्तक 12 अध्याय नंबर चैप्टर 12, गिनती पुस्तक 12 अध्याय पहले 8 पद मैं पढ़ रहा हूँ। पहले 8 पद, गिनती पुस्तक 12 अध्याय पहले 8 पद, नंबर चैप्टर 12 1 to 8। मूसा ने एक कुश स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कुश स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा से ही साथ बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उसकी ये बात यहोवा ने सुनी। मूसा पृथ्वी पर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया और अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। 7 पद, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा ही है, तो ये सब कारणों में विश्वास योग्य है। 8 पद, उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वो यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की
निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे। सो मूसा का जीवन बिल्कुल डिफरेंट है। बाकी जितने भी दास लोग हैं या नबी हैं, उनका जीवन से मूसा का जीवन बिल्कुल भिन्न है। ये परमेश्वर खुद गवाही दे रहे हैं। और 7 पद में कहता है, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वो तो मेरे सब घराने में विश्वास हो गया। सो किसी से सपने से बात करता था, प्रभु दर्शन से बात करता है, लेकिन कहता है मूसा से मैं आमने सामने बात करता हूँ। सो मूसा आमने सामने जैसे दो फ्रेंड्स बात करते हैं, जैसा जो व्यक्ति आपस में बात करते हैं, ऐसा परमेश्वर से बात करता था। सो ऐसा परमेश्वर जब बात करता था, परमेश्वर से आज्ञा प्राप्त किया उसने। सो तब आके जाके फिर इजराइलों को वो बोलता था। सो यहाँ पर हम देखते हैं 7 अध्याय में, जब 90 वर्ष में, तेलुगु में, हिंदी में, इंग्लिश में 89 वर्ष में जब परमेश्वर से बात किया, परमेश्वर ने उससे क्या बात किया हमें नहीं मालूम, लेकिन आगे जाके हम देखते हैं 8 अध्याय में। देखिए 8 अध्याय में यहाँ लेवियों को सेपरेट करता है। एक बार हमें ये वचन पढ़ना है, गिनती पुस्तक 8 अध्याय 5 से 15 तक मैं पढ़ रहा हूँ। 5 से 15 गिनती पुस्तक 8 अध्याय, नंबर चैप्टर 8 फ्रॉम 5 to 15। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलों के मध्य में से लेवियों को अलग लेकर शुद्ध कर, उन्हें शुद्ध करने के लिए तू ऐसा करके पावन करने वाला जल उन पर छिड़क दे। फिर वे सर्वांग मुंडन कराए और वस्त्र धोए और वे अपने को शुद्ध करे। वे महीने के अन्न बलि समेत एक बछड़ा ले, तो पाप बलि के लिए एक दूसरा बछड़ा लेना, और तो लेवियों को मिलाप वाले तंबू के सामने पहुंचाना और इजराइलों की सारी मंडली इकट्ठा करना। तब तो लेवियों को यहोवा के आगे समीप ले आना और इजरायली अपने अपने हाथ उन पर रखे। तब हारून लेवियों को यहोवा के सामने इजरायलियों को ओर से हिलाई हुई भेंट करके अर्पण करे कि यहोवा की सेवा करने वाले ठहरे। तब लेवी अपने अपने हाथ उन बछड़ों के सिरों पर रखे और तू लेवियों के लिए प्रायश्चित करने को एक बछड़ा प्राप्त बलि करे और दूसरा होम बलि करके यहोवा के लिए चढ़ाना, और लेवियों को आरोन और उसके पुत्रों को सन्मुख को खड़ा करना और उनको हिलाने का भेंट के लिए यहोवा को अर्पण करना। इस प्रकार तू उन्हें इजराइलों में से अलग करना और वे मेरे ही ठहरेंगे। 14 वर्ष, इस प्रकार तू उन्हें इजराइलों में से अलग करना और वे मेरे ही ठहरेंगे। 15 पद, और जब तू लेवियों को शुद्ध करके हिलाई हुई भेंट के लिए अर्पण कर चुके, उसके बाद वे मिलाप वाले तंबू संबंधी सेवा टहल करने के लिए अंदर आया करे। तो इस प्रकार से जब मूसा से परमेश्वर ने बात किया, जब आगे मूसा कुछ आज्ञाएं हारून को देता है दीपक जलाने के विषय में, 8 अध्याय शुरू में 1 से लेकर 4 तक, और 5 पद से फिर 5 पद में फिर क्या कहता है, फिर मैं पढ़ रहा हूँ 8 अध्याय 5 पद। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलों के में से लेवियों को अलग लेकर शुद्ध करो। तो आप और मैं, हम एक लेवी के समान प्रभु ने हम लोगों को अलग किया है। इजराइलों के बीच में से कुछ लोगों को प्रभु की सेवा करने के लिए, सेवकाई करने के लिए, प्रभु का या बच्चे की सेवकाई या कोई भी हो, प्रभु के काम करने के लिए हम लोगों को प्रभु ने इजराइलों में किया। हमारा भी हमें भी प्रभु ने अब अलग किया। अब मुख्य रूप से सब मिलकर पढ़ेंगे। यहाँ पर भी आप लोग 7th वर्ष नंबर चैप्टर 8 वर्ष 7, संख्याकांडम 8 अध्याय 7। उन्हें शुद्ध करने के लिए तो ऐसा कर कि पावन करने वाला जल उन पर छिड़क दे। फिर वे सर्वांग मुंडन कराए और वस्त्र धोए और वे अपने को शुद्ध करे। यहाँ पर लिखा सर्वांग मुंडन करे, लेट देम शेव लिखा है। सो अपने आप शेव करके शुद्ध करना है लेवी लोगों को, अपने आप को शुद्ध करना, पवित्र करना। सो इजराइल लोगों को जैसा बाकी इजराइल लोग जैसा रहते हैं, अच्छा लेवी लोग नहीं रह सकते, ऐसा विश्वासी लोग नहीं रह सकते। हम लोगों को अलग 7 पद में कहता है, 5 पद में कहा इजराइलों में से अलग करना, इजराइलों के मौके में से लेवियों को अलग करना। सो आपको और मुझको प्रभु ने अलग किया।
सो हम हमारा पहचान अलग होना चाहिए। हम दूसरे लोगों के साथ जैसा संसारिक लोग करते हैं हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अपने आप को क्या करना है, एक शुद्ध रखना है। तो ऐसा जो शुद्ध रखते हैं उनकी प्रार्थना, क्योंकि लेवी लोगों का काम क्या है, प्रभु ये एक बार सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 29, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 29 वर्स 11, రెండవ దినవృత్తాంతములు 29:11, दूसरा इतिहास 29 अध्याय उसका 11 पद, सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 29 वर्स 11। सब मिल पड़ेंगे यहाँ पर भी हो। ये मेरे बेटो ढिलाई ना करो, देखो यहोवा ने अपने सन्मुख खड़े रहने और अपनी सेवा टहल करने और अपने पहलुए और धूप जलाने वाले का काम करने के लिए तुम्ही को चुन लिया है। इस क्वेश्चन में तेलुगु में पढ़ रहा हूँ। दूसरा इतिहास రెండవ దినవృత్తాంతములు 29:11, दूसरा इतिहास 29 अध्याय 11 पद, సెకండ్ క్రానికల్ 29:11, రెండవ దినవృత్తాంతం 29:11 తెలుగులో, నా కుమారులారా తనకు పరిచారికులై ఉండి ధూపం వేయుచుండుటకును తన సన్నిధిని నిలుచుటకును తనకు పరిచర్య చేయుటకును యెహోవా మిమ్మల్ని ఏర్పరచుకుని కనుక మీరు అశ్రద్ధ చేయకుడి। सो हम लोग हमें कुछ लोग प्रभु ने कुछ जिम्मेवारी दिया कलीसिया में। क्या जिम्मेवारी दिया यहाँ पर, यहाँ लेवियों को संबोधन कर रहे। कौन? हिजकिय्याह राजा लेवियों को यहाँ पर संबोधन कर रहे। उससे पहले प्रभु का घर जब बंद पड़ा था उसको साफ करवाता है और कहता है हमारे पहले लोग जो है उन्होंने ठीक से धूप वगैरह नहीं जलाते थे, इसलिए परमेश्वर क्रोध आया करके समझाता है। फिर लेवियों को ये आज्ञा देता है। क्या करता है? నా కుమారులారా తనకు పరిచారికులై ఉండి ధూపం వేయుచుండుటకును తన సన్నిధిని నిలుచుటకును తనకు పరిచర్య చేయుటకును యెహోవా మిమ్మల్ని ఏర్పరచుకుని కనుక మీరు अश्रद्धा చేయకుడి। सो इस प्रकार से लेवी लोगों को परमेश्वर ने अलग किया। लेकिन हम बाद में देखते हैं यही लेवी लोग जो है 16 अध्याय में जब आते हैं, आइए अब गिनती पुस्तक 16 अध्याय नंबर चैप्टर 16, गिनती पुस्तक 16 अध्याय हम देखते हैं लेवी का गोत्र में से कोरह और रूबेन के गोत्र में से दातान अबीराम, ये लोग जो है मूसा और अहरोन के विरोध होते हैं, उनके विरोध में खड़े होते हैं। तब वो परमेश्वर नाराज होकर के उन लोगों को, हम लोग मालूम है कि एकदम जहाँ पर वो खड़े होते हैं वहाँ जमीन पट जाता है, वो लोग नीचे जमीन के अंदर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने उनको दंड दिया। उस समय वो लोग इस्राएल लोगों सब लोग क्या किया, मूसा और अहरोन के विरोध हो जाते हैं। जब वो विरोध हो जाते हैं तब वो परमेश्वर का क्रोध फिर इजराइल उनके ऊपर भड़कता है। सो इस कॉन्टेक्स्ट में जो आजकल कोरोना वायरस चल रहे पूरे दुनिया में, उस समय भी हम देखते हैं एक प्लेग आया। सो वो प्लेग आया, किस प्रकार से वो प्लेग थमा, इसको हम यहाँ पर यह अध्याय में पढ़ सकते हैं। देखिए गिनती पुस्तक 16 अध्याय, अब हम 41 से 50 तक आमने सामने तो बारी बारी पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपके अकेला पढ़ रहा हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए अपना प्रवचन भाग में, चाहे तेलुगु में हो, चाहे हिंदी में हो, इंग्लिश में हो। गिनती पुस्तक उसका 16 अध्याय 41 टू और उसका 50 तक। दूसरे दिन इजराइलों की सारी मंडली ये कहकर मूसा और आरोन पर बुड़बुड़ाने लगे कि यहोवा की प्रजा को तुमने मार डाला है। और जब मंडली के लोग मूसा और आरोन के विरुद्ध इकट्ठा हो रहे थे तब उन्होंने मिलाप वाले तंबू की ओर दृष्टि की और देखा कि बादल ने उसे छा लिया है और यहोवा का तेज दिखाई दे रहा है। तब मूसा और आरोन मिलाप वाले तंबू के सामने आए। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम उस मंडली के लोगों के बीच से हट जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। तब वे मुंह के बल गिरे और मूसा ने हारून से कहा, धूप दान को लेकर उसमें वेदी पर से आग रखकर उस पर धूप डाल, मंडली के पास पूर्ति से जाकर उसके लिए प्रार्थना कर, क्योंकि यहोवा का रूप अत्यंत है और मरी यानी प्लेग मरी फैलने लगी है। 47 नंबर 47, मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून धूप दान लेकर मंडली के बीच में दौड़ गया और ये देख कर कि लोगों में मरी प्लेग फैलने लगी
उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया। जहाँ पर हम रहे 48 से पढ़ेंगे 48 पद। और वो मुर्दों और जीवित के बीच में खड़ा हुआ, तब मरी थम गई। और 49, और जो कौरव के संग बागी होकर मर गए थे उन्हें छोड़ जो लोग इस मरी से मर गए थे वे 14,700 थे। 50, तब हारून मिलाप वाले तंबू के द्वार पर मूसा के पास लौट गया और मरी थम गई। सो मरी यानी प्लेग उन दिनों में जब आया, क्यों आया कि प्रभु के लोग, इजराइल लोग, परमेश्वर के दास लोग मूसा आरोन के विरुद्ध आए थे, उनके एग्नेस्ट हो गए थे। तब यह बहुत बड़ा पहले घोड़ा दातान अबीराम या जेल के नीचे जेल गए। के बाद इजराइलों के बीच में परमेश्वर का क्रोध भड़का। सो जब क्यों भड़का, इजराइल की सारी मंडी बुड़बुड़ाने लगे और कुड़कुड़ाने लगे कि मूसा के विरुद्ध में और हारून के विरुद्ध में। सब परमेश्वर का क्रोध भड़का। तब क्या हुआ, प्लेग आया, वहाँ पर बहुत बड़ा महामारी आया। तो उस महामारी से यहाँ पर 14,700 लोग मर गए। लेकिन हमारे लिए मुख्य पार्ट यहाँ पर यह है कि यहाँ पर कौन खड़ा है बीच में, आरोन के विषय में कहा गया। 48 वर्ष विषय में पढ़ रहा हूँ, गिनती पुस्तक 16 का 48। और वो मुर्दों और जीवित के मध्य में खड़ा हुआ, तब मरी थम गई। मैं तेलुगु में भी पढ़ना चाहता हूँ इसको। संख्याकांडम 16:48, संख्याकांडము 16:48, गिनती पुस्तक 16 अध्याय, नंबर चैप्टर 16, 48, 48 వచనం। అతడు సచ్చిన వారికిని బ్రతికి ఉన్న వారికి మధ్యను నిలబడగా తెగులు ఆగెను। जैसा प्रभु के दास ने पिछले बार भी बताया, इर्मिया 5 अध्याय पहले पद में और एजकेल चैप्टर 22-30 में हमने देखा। पहले इजराइल में कहा कि तुम ढूंढो कोई ऐसा राइट चलने वाले व्यक्ति के लिए, और इसी प्रकार से परमेश्वर खुद ढूंढा एजकेल चैप्टर 22-30 में, जबकि उन्होंने कहा कि दरार में खड़ा होने वाला कोई है, तो प्रभु ने ढूंढा तो कोई नहीं मिला। सो यहाँ पर हम देखते हैं उस जमाने में अहरोन था। सो आजकल जो कोरोना वायरस जो फैल रहे हैं, अगर इसको तमना है, ऐसे प्रभु के सच्चे भक्त लोगों की जरूरत है। अब जो अहरोन जैसा यहाँ पर खड़ा है कि अतడు సచ్చిన వారికిని బ్రతికిన్న వారికిని మధ్యను నిలబడగా తెగులు ఆగెను। सो ये महामारी अगर बंद होना है, ऐसे अहरोन जैसा, मूसा जैसा ऐसे भक्त लोगों की अब जरूरत है। जो ऐसे व्यक्ति जो प्रभु ढूंढ रहे, ऐसे व्यक्ति जो उनके बीच में खड़ा हो सके। कैसे खड़ा होना, और वो मुर्दों और जीवितों के मध्य में खड़ा हुआ, तब मरी थम गई, तब तेगुल आगिपोయింది। सो वो तो तमी जो प्लेग था वो खत्म हुआ। सो इन दिनों में ऐसे भक्त लोग, ऐसी प्रार्थना करने वाले प्रभु ढूंढ रहे। सो प्रार्थना मतलब 5 मिनट 10 मिनट प्रार्थना करने वाला नहीं। प्रभु कितना प्रार्थना करना चाहिए, कितने देर प्रार्थना करना चाहिए। कई बार हम सिर्फ वचन हम एक लेक्चर के रूप में सुनते हैं, चले जाते हैं, लेकिन एक्चुअली हम प्रैक्टिकली हमें कुछ लोग क्या कुछ पॉइंट्स बोल के चले जाते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, खाली पॉइंट से हमें कुछ नहीं मिलेगा। वास्तव में ही हमारा प्रैक्टिकल लाइफ, वास्तव में जैसे बक्सिंग थे, यहाँ पर प्रेरित पौलुस था, वो अपना अनुभव बताते थे। भाई बक्सिंग भी कई बार उनका अपना अनुभव बताते थे। और भाई पौलुस भी अपना अनुभव कहता था। कैसे, जैसा जब वो जहाज में जा रहे थे, जब वो पट गया था, उससे पहले क्या कहता है, एक वचन में पढ़ना चाहता हूँ। एक्ट चैप्टर 27, प्रेरितों का काम 27 अध्याय उसका 23 पद। అపోస్తల కార్యములు 27 అధ్యాయము 23 వచనం। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसको सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, ये पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इसलिए ये सज्जनों ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया है
वैसा ही होगा। सो यहाँ पर पौलुस अपना अनुभव बता रहे, परमेश्वर कैसे स्वर्गदूत उससे बात करता था। सो और परमेश्वर ने उसको ढाल दिया, तुम डरने की कोई जरूरत नहीं। जो क्या कह रहे, जो 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 तुम्हारे साथ यात्रा कर रहे, तुम सबको, उन सबको तुझे देता हूँ। सो यहाँ फिर से पढ़ रहे हैं 24, ये पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। सो इसलिए उनको ढाढ़स देते हैं। इसलिए ये सज्जनों ढाढ़स बांधो। सो हमें हर एक व्यक्ति ऐसा बनना। अब हम कैसे बनना, परमेश्वर के बच्चों के को, दूसरों को, जैसा उस समय मूसा हारून इजराइल को सामने खड़े होकर के वो मरी, जब खड़े हो गया वो मरी खत्म हो गया, ऐसा हम भी प्रभु की उपस्थिति में खड़े होकर के प्रभु को उसमें प्रार्थना करने के द्वारा ही ये समस्या हल होगा। जो भी समस्या दुनिया में आता है वो समस्या का हल केवल परमेश्वर का। इवन अन्य जाति भी कई बार कहते हैं आपके दुआ हैं, आप दुआ करिए, कहते हैं प्रार्थना करिए। सो हर एक व्यक्ति चाहता है कि प्रार्थना करे। इवन योना के टाइम में भी हर एक अपना अपना देवता से वो प्रार्थना करते कि हम भी कर रहे तुम भी करो करके। सो इस प्रकार से सब लोग दुनिया में जब भी विपत्ति आते हैं सब अपना अपना देवता से प्रार्थना करते हैं। लेकिन हम जो है जानते हैं हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वांतर्यामी परमेश्वर और सर्वज्ञानी परमेश्वर, केवल वही इस महामारी जैसा है वैसा खत्म कर सकता है, केवल परमेश्वर के हाथ में है। लेकिन हम लोग क्या होना है, आहारों जैसा वो जो मरे उनके बीच में, मुर्दों के बीच में, जीवते उनके बीच में खड़ा हो गया, तब वो मरी थम गई। ऐसा आपको और मुझको अब ऐसा आगे हमें आना है। ऐसे प्रार्थना का जीवन हमें होना चाहिए। सो प्रार्थना कितना देर करना चाहिए, एक वचन अब देखता हूँ, मत्ती 26:40, मैथ्यू 26:40, मत्ती सुवार्త 26:40, मत्ती 26:40, मैथ्यू चैप्टर 26:40। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी जाग सके? सो क्या कुड यू नॉट क्या कहते, कुड यू नॉट वॉच विथ मी फॉर 1 आवर? सो 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा मेरे साथ तुम प्रार्थना में जाग नहीं सकते? या प्रभु पूछ रहे। सो हमें से हर एक से पूछ रहे। हम देखते हैं कई बार जो वर्किंग होते हैं, कई लोग मेरे ख्याल 1 घंटे में भी प्रार्थना नहीं कर पाते। सो कम से कम छुट्टी का दिन आप कितने घंटे प्रार्थना करते हैं? आप निर्णय लीजिए। आज तक आपने नहीं किया तो आज निर्णय लीजिए कि आप प्रभु, अब लॉकडाउन भी खत्म हो गया, समय मोस्टली नाम के लिए लॉकडाउन है, अब कई लोग ऑफिस जा रहे हैं। सो इसलिए अभी तक 40 डेज हमारे लॉकडाउन था। क्या आपने सचमुच समय सही बिताया? क्या सचमुच हम प्रभु के सन्मुख घंटों घंटों बिताया? केवल यहाँ पर प्रभु कह रहे हैं तुम परीक्षा में ना गिरे। प्रभु के लिए प्रार्थना करने के नहीं कहा, प्रभु की सपोर्ट के लिए मेरा मृत्यु टल जाए उसके लिए तुम लोग प्रार्थना करो, ऐसा नहीं करे, तुम लोग परीक्षा में ना गिरे, है ना। फिर उसने चेलों के पास आकर कहा, उन्होंने क्या तुम मेरे साथ 1 घड़ी भी ना जाग सके? 41, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। सो अब हमें वो समय आ गया है, तो 5 मिनट 10 मिनट प्रार्थना करने से नहीं चलेगा। सो हमें प्रभु कह रहे हैं कम से कम 1 घंटा। मैं जनरली ये कहता रहता हूँ, सामान्य विश्वासी को प्रभु हमारे 24 आवर्स में 1 घंटा प्रार्थना करना, सामान्य विश्वासी को। लेकिन जो मिनिस्ट्री में है उनको और अधिक समय बिताना पड़ेगा। सो इसलिए एक बार मैंने ये बताया था, शायद 91 में एक बार मैंने एक जगह शेयर किया, 1 घंटा जो प्रार्थना करता डेली, वो सिर्फ एक ऑक्सीजन लेकर के जो जीता है, केवल हम जो है हवा से जीते हैं, नहीं ऑक्सीजन लेने से कितने दिन हम रहते हैं। सो 1 घंटा जो प्रार्थना करने वाले विश्वासी ऑक्सीजन लेके जीने वाले के बराबर है। जो 1.5 घंटे प्रार्थना करता है 24 आवर्स में, वो पानी पी के जीने वाले के बराबर है। और पानी पीने वाले में हमें पता है बिना काके पानी पीने वाला कितने दिन रहेगा। सो जो 1.5 घंटे प्रार्थना करने वाले कैसे हैं, पानी पी के जीने के बराबर है। और जो 2 घंटे प्रार्थना करता है ना साधारण भोजन करने वाले के बराबर है। जो 2.5 घंटे डेली प्रार्थना करता है वो प्रोटीन से खाके जैसा बल प्राप्त करता है, या मांस से खाता है, चिकन मटन खाता है, वो जैसा बल उसको अंदर आता है, ऐसा 2.5 घंटे जो डेली प्रार्थना करता है कम से कम। क्योंकि हम जानते हैं
दशमांश कहते हैं, दशमांश ना केवल पैसा में से, अगर हम समय से भी हम दे सकते हैं तो और बड़ी बात है। सो अगर समय से देना है तो कितना बनता है, 2 घंटे 24 मिनट, यानी कम 2.5 घंटे लगभग। अगर दशमांश समय का हम देते हैं, उनका आत्मिक जीवन एक प्रभावशाली होगा, सचमुच एक ताकत उनके अंदर होगा, उनके अंदर प्रार्थना की शक्ति होगी, पवित्र आत्मा की शक्ति होगी, उनके अंदर पुनरुद्धार शक्ति होगी। लेकिन जो उससे कम करते हैं, इतना बल शक्ति उनके अंदर नहीं होता। इसलिए हमारे जीवन में क्या निर्णय लेना आज के दिन, यहाँ पर प्रभु ने कहा, कुड यू नॉट वॉच विथ मी 1 आवर। सो कम से कम 1 घंटा 24 आवर्स में विश्वासियों को देना है। जो मिनिस्ट्री में भाग लेते हैं उनको अधिक समय प्रभु के पुस्तक में प्रार्थना में बिताना है। इसलिए मेरा कई बार लूका 21:36 मैंने कई बार पहले भी शेयर किया, कई जगह में प्रेयर मीटिंग्स में जब मैं प्रसाद राव भाई के घर में जाता था, कई बार उसमें मैं जब भाई प्रसाद राव कुछ बार वचन देते थे, कुछ बार मुझे कहते थे आप वचन दो, तो उस समय ज़्यादातर मैं लूका 21:36 के बारे में मैं वचन दे। एक बार आखिरी में उसको भी पढ़ लेंगे, लूका 21:36, लूका 21:36, लूका 21:36, लूका 21:36। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाले घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। తెలుగులో చదువుతున్నాను చూడండి, లూకా సువార్త 21:36, లూకా సువార్త 21:36. కాబట్టి మీరు జరుగుబో వీటి నెలను తప్పించుకొని मनुष्य कुमार एदुटा निलोबटकु शक्ति। सो प्रभु के सामने जब दोबारा आएगा, उसके सामने में खड़े होने के लिए शक्ति कैसे मिलेगा कि शक्ति గలవారగనట్లు ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థన చేసు మెలకుగా ఉండండి, మెలకుగా ఉండండి చెప్పాను। यहाँ पर प्रभु ने ये नहीं बताया कि उत्पत्ति से लेकर रेवलेशन तक पढ़ के जो बिल्कुल कंटेस्ट करते हैं उन लोगों को मैं स्वर्ग ले जाऊंगा। यहाँ पर ये नहीं लिखा कि जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक जो पूरा बाइबल ध्यान रखते हैं वो लोग स्वर्ग जाएंगे। प्रभु ने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा ऐसा? क्योंकि वो अनंत ज्ञानी परमेश्वर है। कई लोग अनपढ़ होते हैं, इवन मैं जानता हूँ कुछ लोगों को तेलुगु भी नहीं पढ़ पाते हैं, तेलुगु भी नहीं पढ़ पाते, ऐसे लोग भी है। सो ऐसे लोग फिर स्वर्ग नहीं जाएंगे। केवल बाइबल पढ़ने वाले, बाइबल नॉलेज रखने वाले, बाइबल प्रोफेसर, बाइबल स्कॉलर्स स्वर्ग जाएंगे, तो बाकी अनपढ़ लोग कहाँ जाएंगे? इसलिए प्रभु ने ये वचन बहुत दृढ़ता से, खुद यीशु मसीह का शब्द है ये, కాబట్టి మీరు జరగబో వీటి నెలను తప్పించుకొని మనుష్య కుమారుని ఎదుట నిలవబట్టుటకు శక్తి గలవారగినట్లు ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థన చేసు మెలకువగా ఉండడని చెప్పాను। సో इसलिए तो एक बार और हिंदी में फिर से पढ़ता हूँ, लूक 21:36, लूक का 21:36। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाले घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के लिए योग्य बनो। सो अनपढ़ लोग, చదువు రాని వారు, వాళ్ళు కూడా ప్రార్థన చేసి భక్తిగా శక్తివంతంగా ఉంటే ఈ వాక్య ప్రకారం ప్రభు వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా ఎత్తబడతారు। सो हम लोग को क्या करना है कि इन अंतिम दिनों में एक पक्का निर्णय लेना है। पहले हम 5 मिनट 10 मिनट जो प्रार्थना करते थे उससे काम चलने वाला नहीं है। और इस समय अब जो बहुत अच्छा फ्रीडम दिया, 17 तक कुछ लोगों को अभी घर में ही है, 17 तक जो लॉकडाउन बढ़ा है, कम से कम आज आप एक निर्णय लीजिए, जो घर में है अधिक समय जो पहले आप करते थे उससे अधिक समय अब प्रभु के पुस्तक में बिताइए। एक और मैं चिटका बताता हूँ आप लोगों के लिए, अगर आप वर्किंग में हैं, आप लोग ऑफिस जाने वाले हैं, आप वर्किंग डे में काम प्राप्त नहीं कर पाते, ज़्यादा छुट्टी का दिन या आप ये काम करिए, उससे पहले दिन जब कल छुट्टी है आज रात भर आप बैठिए, अपना प्रार्थना करिए, कल सुबह थोड़ा लेट से उठिए। एक तरीका ये है ऑल नाइट प्रेयर। हम कलीसिया के तरफ से ऑल नाइट प्रेयर नहीं कर पा रहे, कल इंडिविजुअली यू कैन डू, अकेले में आप कर सकते हैं। जब आपकी पत्नी आपकी बच्चे सो जाते हैं, आप एक कमरे में, अगर सिंगल कमरे में हो तब भी आपकी पत्नी बच्चे सो जाते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं। आप करके देखना आपका स्पिरिचुअल लाइफ कैसे शक्तिमान होता है, आप खुद देख के करके देखिए। सो आप व्यक्तिगत रूप से प्रभु का आगमन के लिए पूर्ण रूप से तैयार रहेंगे। सो लेकिन आप अब तक जो जैसा भी हमने टाइम पास किया है, अब आप प्रभु आने वाला है, शीघ्रता से आने वाला, इसलिए हमें प्रार्थना की बहुत जरूरत है। इसलिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ, अगर एक घंटा आप समय बिताते प्रभु के लिए, 20 मिनट्स बाइबल पढ़िए, 40 मिनट्स प्रार्थना करिए। यही हम भाई भक्त सिंह के जीवन में हमने देखा। एक बार आखिरी में मैं
एक बार मैं भाई भगत सिंह के बारे में एक घटना जो हुआ है एक्चुअली उसके शेयर करता हूँ। एक बार 1956 में भगत सिंह वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम हैदराबाद टू चेन्नई बाई ट्रेन। एक बार जो है भाई भगत सिंह जो है हैदराबाद से चेन्नई ट्रेन से जा रहे थे। उस रात को आप लोग जानते हैं लगभग पूरा रात जर्नी होता है हैदराबाद टू चेन्नई जो है उस समय मद्रास कहते थे। सो मद्रास तक जाने के लिए रात भर यात्रा होता था। सो भाई भगत सिंह को नीचे वाला सीट जो है उन दिनों में आप लोग जानते हैं मैनुअल टिकट होता था, जो हम चाहते वो टिकट देते थे। उस समय कंप्यूटराइज नहीं था, सो इसलिए जो हम चाहते वो टिकट देते थे। मैंने सुना भाई भगत सिंह के दो सीट बुक करते थे नीचे वाले आमने सामने, ताकि बीच में वो कुछ ना कुछ बिस्तर बिछा करके अपने पे आके वो प्रार्थना कर सके। सो 1956 में भाई भगत सिंह को मिनिस्ट्री के लिए चेन्नई जाना था हैदराबाद से। सो वो ट्रेन में बैठ गए और जैसा वहाँ पर जो सियाप करके चले गए भाई लोग, वो अकेले वो यात्रा कर रहे। जब वो प्रार्थना करने के लिए घुटने पे टेके रात को उनका जो डिनर वगैरह कर लिया हो पता नहीं किया, मैं नहीं मालूम। बाद में जब वो 9 बजे के आसपास वो प्रार्थना में बैठ गए, एग्जैक्ट टाइम मुझे नहीं पता, तो एक व्यक्ति ऊपर से ध्यान से देख रहे, उसी कंपार्टमेंट में यात्रा कर रहे एक और व्यक्ति। भाई भगत सिंह जो है घुटने में आ गए, वो प्रार्थना कर रहे। बीच में वो जो ऊपर बैठा है जो दूसरे सीट पे, वो देख रहा है ये भाई जो लगातार प्रार्थना कर रहा है। सो वो फिर थोड़ी देर में वो सो गया। सोने के बाद वो जब बाथरूम करने के लिए निकला 2 बजे आसपास, फिर तब भी भाई भगत सिंह उठने पे थे। फिर थोड़ी देर फिर वो आके बाथरूम करके फिर वो सो गया। फिर धीरे धीरे 4-5 बज रहे, तब जाके तब भी घुटने पे हैं। फिर थोड़ी देर में फिर मद्रास स्टेशन आ गया। जब मद्रास स्टेशन आ गया, सुबह हो गया, भाई भगत सिंह को रिसीव करने के लिए जय श्यामा से मंडली से बहुत से लोग वहाँ पर आए हुए हैं। सो वो सब जब बाहर, भाई भगत सिंह भी बाहर आ गए और ये व्यक्ति जो ऊपर था वो भी बाहर आ गया। जब आप बाहर आ गया तब पूछा उन बिलीवर से जो आए भाई भगत सिंह को रिसीव करने के लिए, उन विश्वासी से पूछा ये कौन है कि रात भर ये प्रार्थना करते रहे। मैं तो थोड़ी देर देखा, फिर मैं सो गया था, फिर मैं बीच में उठा तब भी प्रार्थना कर रहे हैं, सुबह भी तक वो प्रार्थना करते रहे, ये कौन है ये व्यक्ति करके पूछा। तो जब उन्होंने बताया ये ब्रदर भगत सिंह करके, तब तो उनको इस व्यक्ति के बारे में शायद सुना होगा लेकिन देखा नहीं होगा। तब उसने ये गवाही दिया। ये कौन था पता है? ये DVS दिनकरण, जो आप लोग जानते हैं। DVS दिनकरण बाद में वो भी प्रभु की बहुत सेवा करके प्रभु में चले गया। सो DVS दिनकरण जो सीनियर था, उन्होंने अपने बाद में जब अपने किताब में लिखा, लोगों के मालूम हुआ। मैं ये गॉडसन के द्वारा ये बात सुना। सो भगत सिंह जो है रात भर ऐसे प्रार्थना करते थे, इसीलिए उनकी सेवा बहुत फलवंत रहा। सो आजकल इन अंतिम दिनों में आपका जीवन, मेरा जीवन ऐसा प्रभावशाली प्रार्थना करने वाला। और आखिरी में एक वचन फिर जैसे हमने शुरू पढ़ा उसको पढ़ करके हम अंत करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। तो हम सबका जीवन प्रभु ऐसा करे इन अंतिम दिनों में, ताकि हम प्रभु का आगमन के खुद तैयार हो, दूसरे भी तैयार हो सके। फिर से हम पढ़ेंगे एक वचन, शुरू में हमने पढ़ा गिनती पुस्तक 7 अध्याय और उसका 89 हिंदी में और इंग्लिश में भी 89 और नंबर 7 89, तेलुगु में 90, सब मिलकर पढ़ेंगे इसको। और जब मूसा यहोवा से बातें करने को मिलाप वाले तंबू में गया, तब उसने प्रायश्चित के ढकने पर से और जो साक्षी पात्र के संदूक के ऊपर था, दोनों करूबों के मध्य में से उसकी आवाज सुनी, जो उसने बातें कर रहा था और उसने यहोवा उससे बातें की। एक वचन और पढ़ेंगे, गिनती पुस्तक 16 का 48, गिनती पुस्तक 16 का 48, संख्या कांडम 16:48, नंबर चैप्टर 16:48, नंबर चैप्टर 16:48, ये भी हम सब मिल पढ़ेंगे। और वो मुर्दों और जीवितों के बीच में खड़ा हुआ, तब वो मरी थम गई। सो वो मुर्दों और जीवितों के बीच में खड़ा रहा। और मूसा के जीवन देखा, परमेश्वर से आमने सामने बातें करता था। और यहाँ पर अहरोन भी मुर्दों के बीच में जीवितों के बीच में खड़ा हो गया, वो मरी थम गई। तो ये प्लेग जो आया वो खत्म हो गई। इसी प्रकार से ये जो कोरोना वायरस है, इसको खत्म होना है तो आपको और मुझको ऐसा जीवन, प्रार्थना का जीवन चाहिए। मुझ मूर्ख कायों को भी, हम सबको भी प्रभु ऐसा प्रार्थना का जीवन दे। प्रभु इस वचन को आशीष दे। तो परमेश्वर का वचन की रोशनी में हम अपने आप को जांचेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना से पहले जोहन डैनियलसन विल सिंग ए सॉन्ग।
shall spend time in prayer. At 9:15, Brother Subara will close. Until that time, as families, wherever you are, spend time in prayer in the light of the Word of God. We have been challenged. God may help us to yield ourselves unto Him. Shall we spend time in prayer? प्रेमेश्वर के पिताजी, जीवते परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद स्तुति आराधना करते प्रभु। एक और बार आपके सन्मुख आते हैं प्रभु। आपने इस रात को मंगलवार प्रेयर मीटिंग में आपने सहायता किया। जो भी वचन भाग आपने हमारे ध्यान में लाए, सब वचनों के धन्यवाद करते हैं। जो भी प्रभु आपके दास ने जिन्होंने भी प्रार्थना किए, उन सबके भी धन्यवाद करते हैं। आप आशीष दे प्रभु जी। आखरोन के जीवन को, मूसा का जीवन हमारे सामने लाए, हृदय से आभारी है। ऐसा जीवन मुजाहिद को दे, हम सबको दे प्रभु। आप ही स्वयं प्रभु, ये जो कोरोना वायरस दिन प्रतिदिन फैलता जा रहा है प्रभु दुनिया में, प्रभु जी इसको आप कंट्रोल करें प्रभु। आप ही कर सकते हैं, और किसी के हाथ में नहीं है। तो आप ही अद्भुत काम, आश्चर्य काम करें। तो हम ऐसा प्रार्थना जीवन हम सबको हमें दे प्रभु। और इस प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं आपके दास के लिए संपूर्ण चंगाई दे प्रभु। आपके दास को अभिषेक करके इस्तेमाल करे। और आने वाले दिनों में प्रभु जी आपके दास को, जो सऊदी अरेबिया भी प्रभु जी जड्डा के लिए प्रभु सेवकाई है, 15 तारीख को आपके दास को अभिषेक करके इस्तेमाल करे। और वसंत कुंज में, गुरुग्राम, नोएडा, संगम विहार, सराय में जो सेवकाई हो रहे, बहुत ऐसा आशीष दे, फलवंत करे प्रभु। आपको दासों को आशीष दे, और जो विशेष जरूरत में है उनके सब जरूरत को पूरा करे। विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर डोमंटी के लिए, जो प्रभु नेपाल में है, बहुत सीरियस कंडीशन में है। आपके दासी को आप छूकर चंगाई दे, सिस्टर डोमंटी को आप छूकर चंगाई दे। इस प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। भाई प्रभुदास को भोपाल से आपने अपने पास बुलाया, आपके उनके सिस्टर के लिए, उनकी पत्नी के लिए, और प्रभु जी उनके बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उन सबकी जरूरत को पूरा करें, आप उनको संतावना दे। इस प्रकार से रेणु के लिए प्रार्थना, सराय में जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, आप प्रभु अनुग्रह दे, अद्भुत काम, आश्चर्य काम करे, उसको दुष्ट आत्मा से प्रभु छुटकारा दे प्रभु जी। और प्रभु जो विशेष जरूरत में, जो डॉक्टर्स है, नर्सेस है, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट है, सफाई कर्मचारी, जो लोग फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं इन दिनों में, प्रभु उन सबके साथ रहे। विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं आपके बच्चे जो घर आपके घर में आते हैं, जो प्रभु जी सिस्टर्स है, जो नर्सेस है, डॉक्टर्स है, उन सबको भी आप प्रभु संभाले, प्रभु सुरक्षित रखे प्रभु। प्रभु एक और बार हम सबको आपके हाथ में सौंपते हैं। अब तक आपने सहायता किया, आने वाले थर्सडे को भी बाइबल स्टडी में आपके दास को अभिषेक करके आप इस्तेमाल करें। संडे वर्शिप सर्विस में भी सहायता करें। एक और बार हम सबको आपके प्रेम आत्म सुनते हुए, प्रभु ये जो डिस्टर्बेंस हो रहा है बीच में प्रभु ऑनलाइन सर्विस में, इसको भी आने वाले दिनों में आप ऐसा ना होने दीजिए। अद्भुत काम, आश्चर्य काम करें, ताकि प्रभु कोई बिना डिस्ट्रप्शन के प्रभु ये सेवा चलता रहे। आपके नाम की महिमा हो। धन्यवाद साथ प्रार्थना लाते हैं शीघ्र वाले यीशु मसीह के नाम में, सुने ग्रहण करें, आमीन। Now may the grace of our Lord and our Savior Jesus Christ, love of God, communion of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Praise the Lord. We will gather for Bible study on Thursday at 7:30. Bible study at 7:30 on Thursday. Kindly make a note and make yourself available. Praise the Lord.